Good morning, students. Today I am here with a new topic, respiration. As I mentioned earlier, that there are various life processes. Out of those life processes, initially we discussed about nutrition, and the second life process, which is also very important, and it is called as respiration. Now, actually, I want to ask one question to you: that what is respiration? And I think that, or I am sure that most of you will answer that, sir, exchange of gases, or we can say that, or you can say that intaking of or inhaling of oxygen or exhaling of carbon dioxide is called respiration. But actually, beta, you are still confused. Okay, now it's not respiration, it's only breathing. Exchange of gases means breathing, it's not complete respiration. It's a part of respiration, we can say that. Okay, but what is respiration? Respiration is actually a biological process in which oxidation of food takes place, okay, and release of energy. Along with the release of energy, I mean to say that what we studied in the process of the nutrition, हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा कि हम फूड को इनटेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और फाइनली जो डाइजेस्टेड फूड है, यानी सिंपलर फॉर्म में जो फूड है, वो फूड आपका एब्जॉर्ब होता है कहाँ? ब्लड स्ट्रीम में. दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. नाउ जो एब्जॉर्ब फूड है, जो ब्लड में मिक्स हो गया, नाउ इट रीचेज इनटू द वेरियस बॉडी पार्ट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन. यू नो वेरी वेल दैट ये बॉडी के प्रोटोप्लाज्म तक पहुंचता है. नाउ सिमिलरली जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स पे जाती है, लंग्स से वो देन ब्लड कैरी करता है, एंड ये ऑक्सीजन भी कहाँ पहुँचाती है? आपकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाती है. नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन, द फूड which was intaken in the process of the nutrition burns, और बर्न का मतलब होता है ऑक्सीडेशन इसका होता है, and it releases energy, and this process is called respiration. Is it clear? So what is respiration? From today onwards you will say that, sir, respiration is a process of oxidation of food to release energy for various metabolic activities. Now I am coming to the next topic very quickly. What are the types of respiration? I think you are aware with it. There are two types of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration. Now what is aerobic respiration? Aerobic respiration is the process of oxidation of food in the presence of oxygen. ठीक है, मीन्स द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब फूड आपका ऑक्सीडाइज्ड होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, देन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. नाउ अब फूड, ग्लूकोज आपका फूड हो गया, ठीक है, ये आपका एंटर करता है साइटोप्लाज्म में. नाउ द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस. इनिशियली ग्लाइकोलाइसिस में फूड आपका साइटोप्लाज्म में, नाउ इट कन्वर्ट्स इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. यू आर ऑब्जर्विंग हियर the first step of aerobic respiration occurs in the cytoplasm of the cell. What happens here? The glucose molecule, any simple form of the food, enters into the glycolysis and converts into 2 molecules of pyruvic acid. Now these pyruvic acid molecule enter inside the mitochondria. अब यहाँ से ये जो pyruvic acid है, ये enter करते हैं कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में. और माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको कि हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, तो उनको क्रेडिट दिया जाता है, उनके नाम पे इस साइकिल को क्रैब साइकिल बोलते हैं. तो क्रैब साइकिल में एंटर करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड, एंड इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2, H2O एंड 38 ATP. ये ATP जो है, दिस इज द फॉर्म ऑफ, वी कैन से दैट इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. यानी जो एनर्जी रिलीज होती है ATP की फॉर्म में रिलीज होती है, एंड ATP इज कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राई phosphate. Clear? So what happens in the aerobic respiration? In the presence of oxygen, the food is completely going to be oxidized to form 6 CO2 plus 6 H2O plus 38 ATP. The first step is glycolysis. It takes place in the cytoplasm, and the second step is called Krebs cycle, and it occurs in the mitochondria. And you are observing that here is a huge amount of energy is going to be liberated. While the another step is called anaerobic respiration. Anaerobic respiration. What is anaerobic respiration? The process of oxidation of food in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. यानी कि एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो एनाएरोबिक में ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. द फर्स्ट स्टेप इज सेम. ग्लाइकोलाइसिस आपकी एरोबिक में भी हुई थी, ग्लाइकोलाइसिस आपकी यहाँ भी होगी, दोनों साइटोप्लाज्म में होती हैं. ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करता है, साइटोप्लाज्म में होती है. फाइनली 2 into पायरुविक एसिड, यानी 2 मॉलिक्यूल किसके बनाएगा? पायरुविक एसिड के बनाएगा. हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन में तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर रहा था, बट यहाँ पे क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर ना करके सीधे ही क्या होता है?
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एब्सेंस में ही ये काम हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस रिक्वायर्ड ही नहीं होती, तो साइटोप्लाज्म में ही ये काम होता है। देखिए साइटोप्लाज्म में ही इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। पहली वाली को तो हम बोल रहे थे क्रैब साइकिल, यहाँ पे से हम बोल रहे हैं फर्मेंटेशन। तो आप देखेंगे यहाँ पर एज ए एंड प्रोडक्ट क्या बन जा रहा है, एल्कोहल बन रहा है। देखो कौन सा एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इसको इथेनॉल भी बोलते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है इसको इथेनॉल भी बोलते हैं, IUPAC नेम जो इसका है। यानी C2H5OH एल्कोहल बन जा रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, प्लस लिटिल बिट अमाउंट ऑफ केवल 2 ATP यहाँ पे एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है वो केवल कितनी बनती है, 2 ATP, यानी बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी यहाँ पे लिबरेट होती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसको जो एल्कोहलिक इंडस्ट्री है, यहाँ पे वाइन वगैरह या बियर वगैरह या अल्कोहल जहाँ तैयार किया जाता है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। वहाँ पे जो फूड यानी जो ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स, उनका एनेरोबिक रेस्पिरेशन कराया जाता है और एनर्जी वहाँ पे इथाइल अल्कोहल को ऑब्टेन किया जाता है। सो दीज आर द 2 स्टेप्स. The first one is aerobic and anaerobic. Now, along with it, I want to discuss different. This question comes in board examination mostly. कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ गया कि व्हाट आर द वेरियस पाथवे इन विच द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर्स. ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आता है एग्जाम में. डिस्क्राइब द वेरियस पाथवे थ्रू विच द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर्स. ठीक है, अब आप लोग घूम जाते हो, अब आप लोग वहाँ न्यूट्रिशन लिखना स्टार्ट कर देते हो. ठीक है, तो यू हैव टू राइट रेस्पिरेशन, एंड आपने रेस्पिरेशन को ही शो करना है, वहाँ एरोबिक भी शो करना है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को भी शो करना है. नाउ द स्टेप इज क्लियर. Now glucose having 6 molecule of oxygen, 6 molecule of carbon, 6 carbon atom I have written, enters into the glycolysis in cytoplasm. Initially it forms pyruvic acid. Now you are observing 3 different arrows are here which are showing 3 different types of reaction. ठीक है. Now first in the absence of oxygen, yeast में आपने yeast आपका एक तरह का फंगस है, इसमें क्या होता है आपका पायरुविक एसिड इथेनॉल, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. एंड दूसरा स्टेप लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये भी आपकी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है. अभी कभी आपने देखा होगा हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, तो हमारी जो मसल्स होती हैं इन्हें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. तो उन मसल्स में, तो मसल्स को लेकिन अब काम करना है तो उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलेगी, फूड से मिलेगी, जाहिर सी बात है. नाउ अब फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन तो सफिशिएंट, क्योंकि रेस्पिरेशन तो हम कर रहे हैं, बट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज नॉट टू सफिशिएंट. तो अब क्या होगा, तो हमारी जो मसल्स की जो सेल्स हैं वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करने लगती हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी ताकि उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो. तो एज अ एंड प्रोडक्ट वहाँ पे वो क्या बना देती हैं, लैक्टिक एसिड बनाती हैं. तो देखा भी होगा व्हेन एवर वी आर डूइंग अ हैवी एक्सरसाइज तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाती है और क्रैम्प से बनने शुरू हो जाते हैं मसल्स में. ठीक है, और साथ में एनर्जी लिबरेट होती है. इज इट क्लियर? नाउ लास्ट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, आपकी CO2 बनता है, H2O बनता है, एंड साथ में ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी लिबरेटेड. तो 3 डिफरेंट पाथवे. फर्स्ट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, सेकंड लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन. These 2 are taking place in the absence of oxygen, and the third one is taking place in the presence of oxygen, and end products are carbon dioxide, water, and energy. At last I want to discuss what is ATP. Now I am using ATP, so I want to discuss what is ATP. The full form of ATP is adenosine triphosphate. Adenosine A stands for adenosine, T stands for tri, and P stands for phosphate. ठीक है. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. नाउ एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वाई इट इज़ कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. तो देखिए बेटा, वेन एवर वी नीड एनी थिंग वी हैव टू गो टू द शॉप, एंड टू द शॉपकीपर वी हैव टू गिव हिम सम मनी. ठीक है, और करेंसी, और इंस्टीड ऑफ करेंसी ही रिटर्न्स अस दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विच वी नीड. तो सिमिलरली व्हेन इनसाइड द सेल इन ए मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वेन एवर द एनर्जी इज रिक्वायर्ड, द ATP breaks down and it releases energy, and this energy is utilized. Now actually what is ATP? Now adenosine diphosphate joins with one inorganic phosphate. Here P means inorganic phosphate, and it synthesizes ATP. यानी कि when diphosphate के साथ एक phosphate additionally add होगा तो triphosphate बनेगा. When the phosphate molecule is going to be added, a huge amount of energy is stored in the form of the bond. ठीक है, whenever the energy is required, ATP breaks, यानी केमिकल बॉन्ड ब्रेक करता है, तो एक ह्यूज अमाउंट में एनर्जी क्या करता है, लिबरेट करता है. आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू.